Hello everyone. So today we are going to discuss again some maths question. Mathematics is very good for all of us, and this is contribute to in our life in a vast area. And if we are confident, then that will help us whole life as well. So going to discuss some maths chapters are there that will definitely be important for all of us. So first one is what? How many poles will be needed to make a 300 meter? It is 300 meter long bridge. Distance is 12 and 1 by 2 means 25 into 2. It is 24 poles. So total number of pole will be 24 plus 1 equals to 25. We will get 24. We'll add the one pole extra and we'll get 25 will be the answer. Next one is Ram, Sham and Mahesh. Ram, Sham and Mahesh. This is Ram, this is Sham, this is Mahesh. Okay. So there is a 5 bowl and then Sham gives 2 bowl to Mahesh and Mahesh gives 5 bowl to Ram. So Ram says Sham say that if he gives 5 bowl to Sham and Sham gives 2 bowl to Mahesh. Sham gives 2 bowl to Mahesh and Mahesh gives 5 bowl to Ram. Mahesh gives 5 bowl to Ram. Then Sham will have number of ball equal to 2 times of number of ball Mahesh has. And Ram will have number of ball equal to 3 times of number of ball Sham has. 3 times to Sham. This is 3 times. This is 2 times. Okay, how many ball Ram had initially? Ram had initially ball. So it is 36. "24 balls. 36, we multiplied it 6 by 9 into 36. A man had two bundles. Of each bundle contained 50 pieces of clothes. And he takes these bundles from city another. There is a 50 octroi points. He cleverly paid one cloth piece from each bundle at each point's tax. Finally, how many pieces did he when he reached to the destination? So initially pay both the pieces of one bundle 25 octroi point. Now he has the one bundle remaining. So after paying 25 pieces from bundle, he has only 25 pieces. A man has a fruit basket with 60 fruits. Okay, 60 fruits. Number of apple is half of the number of mango. It is apple, it is mango, it is x by 2. And number of the oranges are 1/4 of the number of apples and mango. So 1/4 of number of apple and mango means it is 3x by 8. Okay, 3x by 8. Now we are taking the LCM SCF, whatever it is 32, it is 12. Okay, so we'll get find the number of the mangoes. So mangoes are 32. Question number 5. If a gun can fire 7 bullets in 9 minutes, so it is 9 minutes interval में 7 bullets है. So firing of 7 times means 6 interval, because number of time taken for firing for the first time, that means 6 interval है यहाँ पे. ठीक है, that means bullet can be fired by the 1 hour. So it is 6 by 9 into 60 equals to 40. So 40 plus 1 equals to 41 bullets will be there. These questions are very
difficult to solve here. No answer, but 41 will be answer. So number of the bullet 6 by 9 into 60, that will be 40 plus 1. Question number 6. If a gun takes 60 seconds to fire for 11 times, then how much time will be taken to fire 8 times? 11 times में ये कितना बोल रहा है? 60 सेकेंड ले रहा है. 60 सेकेंड ले रहा है. 11 टाइम्स में 10 इंटरवल होंगे, तो 60/10. ठीक है, 60/10 हो गया. अब ये पूछ रहा है 7 टाइम, 7 इंटरवल का पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 42 सेकेंड. नेक्स्ट वन है ABCD डिपॉजिटेड सम अमाउंट. तो ये ABC और D ने डिपॉजिट. A डिपॉजिटेड डबल अमाउंट ऑफ द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय C. ओके, एंड B इज़ द हाफ ऑफ दैट ऑफ A, हाफ ऑफ दैट ऑफ A, B, and D is deposited amount which is A deposited amount is half of D deposited amount. A deposited the half of D का. ठीक है, that means so amount B and C, these are equal, so B and C it is equal. Okay, now next question 8. Height of a pole is 30. Okay, cockroach climbs in the 5 meter. 5 मीटर ये क्लाइंब कर रहा है. फॉल्स डाउन 1 मीटर एवरी डे. इन हाउ मेनी डे विल इट क्लाइंब अप टू द टॉप? सो +1/4 इक्वल्स टू 7 1/4 डे. इसका एक फॉर्मूला होता है हाइट माइनस क्लाइंब अपॉन J+1. ओके, J+1 का मतलब हाइट ऑफ द पोल 30 आ गया, कॉकरोच क्लाइंब कर रहा है, 5 को माइनस कर देंगे, एंड फॉल डाउन इन 1 मीटर एवरी डे. इन द हाउ मेनी डेज विल इट क्लाइम टू बी द टॉप? सो ये H-C/J+1 का फॉर्मूला लगा देंगे. J की वैल्यू 4, एंड वील गेट द आंसर 7 1/4. हाइट ऑफ द पोल इज़ 50 मीटर. ओके, 50 मीटर है, एंड ये क्लाइंब करता है 8 मीटर. फॉल डाउन 2 मीटर. 2 मीटर ये फॉल डाउन हो रहा है. ठीक है, 2 मीटर ये क्या हो रहा है? फॉल डाउन हो रहा है. सो 8/2 कितना हो जाएगा? 8/2 4 हो जाएगा. अगेन 4 +1 लगा दो, तो ये भी आ जाएगा 7 1/4. क्वेश्चन नंबर 8. सॉरी question number 8 we did, and now the question number 10. Question number 10. Question number 10 is remainder upon total climbing. Remainder upon double of the quotient equals to remainder upon total climbing. No. This question, we'll do this question after some time. Okay, question number 11. 15 children or 12% can go through a lift. So 12% equals to 15 children, means 4% equals to 5 children. Okay, so 5/4 into, so 8% का पूछा है इसने, into 8 कर दो, equals to 10 आ जाएगा. That will be the 10. So question number 11, 10 आ गया. टोटल थे 15 चिल्ड्रन, -10% को इससे माइनस किया तो 5 चिल्ड्रन आ गया. सो नाउ 5 चिल्ड्रन विल गो फॉर द 8%. क्वेश्चन नंबर 12. में बोल रहा है एक ग्रुप ऑफ द 18 पीपल, ईच ऑफ देम हैंड शेक विद वन अनदर, फाइंड द नंबर ऑफ द हैंड विच इज शेक्ड. सो x -1 ये फॉर्मूला होता है 18 × 17 306. ईच पर्सन इन द ग्रुप 20 पीपल ऑफर्ड ए गिफ्ट टू वन अनदर, फाइंड द नंबर ऑफ द गिफ्ट्स. अगेन ये नंबर ऑफ द गिफ्ट्स वाला क्वेश्चन, x -1 मतलब 20 × 19 मतलब 380. क्वेश्चन नंबर 14 जो है
10 people attended a party. They offered a gift to the every second person. ये second person बोल रहा है. Find the number of the total gifts. तो ये second person आ गया, मतलब x minus 1 upon 2 होगा यहाँ पे. सेकेंड पर्सन में ऐसा ही होता है, अपॉन 2 करते हैं. 10 इंटू 9 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 45. ठीक है. नाउ नेक्स्ट है 15 नंबर. 15 पीपल इन द पार्टी हैंडशेक विद द सेकेंड. अगेन सेकेंड पर्सन आ गया, मतलब 15 इंटू 14 अपॉन 2, 105. अब है क्वेश्चन नंबर 16. यहाँ पर भी दे रखा है कि सम टीम्स प्लेड विद एवरी सेकेंड टीम इफ़ टोटल मैचेस इज़ 120. तो ये हो जाएगा x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 120. यहाँ दे रखा है, मतलब x² माइनस x माइनस 240 इक्वल्स टू 0. x माइनस 16 x प्लस 15 x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा. ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16. 120 टू द एवरी सेकेंड पर्सन, so it will be the 16. Okay, now next one is D. Some deer and some hens are in the group. Number of the heads is 15, the number of their legs is 50. Then find the number of the deer in the group. तो यहाँ पे बोल रहा है कि x प्लस वाई बराबर 15 नंबर ऑफ द हेड्स. ठीक है, और 4x जो नंबर ऑफ द लेग्स हैं. तो जो डियर होगा उसका 4 होगा और हेंस का 2 होगा, इक्वल्स टू 50. दोनों को सॉल्व कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी. तो 10 अपना डियर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 17 हो गया. अब 18. सम काउज एंड सम hens are grouped. The heads counted if the found 25 in number and legs found 80. अब ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पर जैसे 100 काउज़ हैं. ठीक है, और 100 काउज़ हैं. ठीक. क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 में काउज़ ले ली हमने. काउज़ नंबर ऑफ द लेग्स कितने होंगे काउज़ के, नंबर ऑफ द लेग्स हो जाएंगे 100. और अगर हैन है तो हैन के नंबर ऑफ द लेग्स कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे. ठीक है, और दोनों के बीच में तो ये हो जाएगा 30 और 23:2 आ गया. ठीक है, तो 2/5 इंटू 25 इसका हेड था, तो ये आ जाएगा 10. नंबर ऑफ द हैंड्स कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे. नाउ नेक्स्ट, इफ फार्मर हैज सम काउज एंड सम हैंड्स, नंबर ऑफ देयर हेड्स आर 38, नंबर ऑफ लेग्स आर 100. अगेन यहाँ पे बताना है कि x प्लस वाई की वैल्यू 38 दे रखी है और 4x प्लस 2y की वैल्यू दे रखी है हमें 100. दोनों को सॉल्व किया, 100 की वैल्यू आई 12, y की वैल्यू आई 26. सो रेशियो ऑफ द काऊ एंड हैंस पूछा था हमसे, तो 12:26 मतलब 6:13 रेशियो हो जाएगा. ठीक है. इन एन एग्जामिनेशन 20 नंबर है कि नंबर ऑफ द क्वेश्चंस जो बता रखे हैं इन एन एग्जामिनेशन. A candidate gets 2 marks for correct answer, loses 1 marks for wrong. He got 80 marks by solving 100 question. 100 क्वेश्चन है, करेक्ट के लिए x मिल रहा है तो 100 माइनस x हो गया. अब ये क्या बोल रहा है, 2 मार्क्स मिल रहे हैं और -1 भी हो रहे हैं, और ये 100 माइनस x सॉल्व करने पर हो रहे हैं, और उसने टोटल 80 सॉल्व किए हैं. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा 2x माइनस 100 प्लस x इक्वल्स टू 80. तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 180 और x की वैल्यू आ जाएगी 60. ठीक, वापस सॉल्व करके बताऊं. देखो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने, 100 माइनस x इसने सॉल्व किए हैं और उसको 80 नंबर मिल रहे हैं इतने सॉल्व करने पर. लेकिन ये बोल रहा है कि 2x मतलब 2 नंबर मिल रहे हैं और 1 नंबर कट रहा है गलत करने पर, सही करने पर. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x की वैल्यू आ जाएगी 180 और x की वैल्यू आ जाएगी 60. ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर में हो जाएगा 60. क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है कि इन ए क्लास 60 स्टूडेंट, ईच बॉय गेव द अमाउंट ऑफ मनी इक्वल टू द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड ईच गर्ल गेव द अमाउंट ऑफ मनी इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉयज़. इफ़ द टोटल अमाउंट कलेक्टेड इज 1600 दैन द नंबर ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास वॉज. अब देखो 60 स्टूडेंट है, बॉयज़ हैं x, गर्ल्स हो जाएंगी 60 माइनस x. ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, x 60 माइनस x प्लस x 60 माइनस x इक्वल्स टू 1600.
यही हुआ ना, इसका मतलब हुआ x² माइनस 60x प्लस 800 इक्वल्स टू 0। मतलब x की वैल्यू 40 या x की वैल्यू 20 एंड 40 आ रही है वैल्यू, तो यहाँ पे D हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा था, बॉयज़ और गर्ल्स की वैल्यू इक्वल है। टोटल अमाउंट हो जाएगा x इंटू 60 माइनस एक्स प्लस x इंटू 60 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1600। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां। लाइट ऑफ ए ट्रैफिक सिग्नल गेट्स ऑन एट एवरी 15 सेकेंड इंटरवल। इट वॉज ऑन द 420 आवर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड 510 आवर फॉर द लास्ट टाइम। फॉर हाउ मेनी टाइम्स इट्स ऑन। सो 420 आवर था एंड लास्ट टाइम 510 आवर्स था। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 50 मिनट से। तो 50 इंटू 60 अपॉन 15 कर देंगे, क्योंकि 15 इसमें एवरी 15 मिनट में ये जल रही है। 4 40, 4 20 और 5 10 के बीच का डिफरेंस कितना है, 50 है। 50 अपॉन 15 इंटू 60 किया तो 200 आया, मतलब 200 एक बार। 201 मतलब नन ऑफ द अबाउ, 201 टाइम्स। Two actors play character in a film in which one is the father of other son. What is the relation between? So ये हो गया एक हस्बैंड, ये हो गई एक वाइफ, और ये हो गया इनका सन। ठीक है, मतलब ये हो गया फादर, ये हो गया सन। ठीक है, टू एक्टर प्ले कैरेक्टर इन ए फिल्म इन विच वन इज़ द फादर ऑफ द सन। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन देम? तो इनके बीच का जो रिलेशन है हस्बैंड एंड वाइफ हो जाएगा, हस्बैंड एंड वाइफ। A clock ring for once at a 1 clock, for twice 2 clock, for thrice is 3 clock on. It rings for that many times as the time is. So for how many times it will be ring a day? अब ये 3 times ons की बात की गई है, मतलब ये 24 आवर्स के अंदर 1 से 12 के बीच में, फिर अगेन 1 से 12 के बीच में। तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 12 तक, ये हो जाएगा 78। तो n + 1/2 का मतलब 12 इंटू 13/2 78। तो 78 + 78 का मतलब 156 टाइम ये रिंग हुई थी। नाउ नेक्स्ट 26। When I reached to the station, I came to the know that I was half an hour earlier than the arrival train. If the train was late 1 and 20 minutes, train late थी, ठीक है, and was to come at the 4:45 hour, 4:45 आवर में आने वाली थी। तो मतलब 3:25 पर आ गई है। ठीक है, ट्रेन का टाइम है ये, है ना, 3:25। फाइंड दैट टाइम I did reach the station. I came to the know half an hour earlier. हाफ एन आवर अर्लियर आया था, तो 30 यहाँ से मैंने घटाए, तो ये आया 2:55। टाइम क्या आ गया, 2:55 आ गया। ठीक है, तो 2:55 आ जाएगा, डी विल बी द आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। 10 काउ कैन ग्रेज ए 10 बंडल ऑफ द ग्रास इन 10 days। अब 10 काउ है, 10 बंडल है, 10 ही वर्क है, तो ये बोल रहे 20 इंटू एक्स अपॉन 20 का क्या होगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10। तो बोल रहा है कि 20 काउस कैन ग्रेज 20 बंडल ऑफ ए ग्रास, दैट विल बी द 10 days। तो ईजी था ही था। अब है क्वेश्चन नंबर 28। डाईमीटर का क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ए शर्ट, देन हाउ लॉन्ग क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड टू हाउ लॉन्ग क्लॉथ फॉर 30। तो 5/2 कर लो, 75 मीटर का चाहिएगा। और नेक्स्ट, ग्रास ईटन बाय 16 हॉर्सेस इज इक्वल टू ग्रास ईटन बाय 12 बिलोक। तो ये 12 बिलोक अपॉन 16, तो जो ईट बाय ग्रास 20 हॉर्सेस का निकालना था, 15 बिलोक आ जाएगा। If 2 cows eat 18 basket grass, then how many basket of grass will be eaten by 18 cows? So यहाँ पे 2 cows है, 18/2 इंटू 18 करेंगे तो 162 बास्केट आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31। ए बॉय गेट्स 2 rupees फॉर ईच करेक्ट टारगेटिंग एंड लॉस 50 पैसे फॉर ईच रॉन्ग टारगेटिंग। 8 है टोटल, -3 किया तो 5 आया, क्योंकि ही लॉस हिज टारगेट 3 times इन द गेम टारगेट टू द 8 times। ये लॉस बता रखा है इसने। अब टोटल अमाउंट ऑफ करेक्ट टारगेट पर इसको 10 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, ये बोल रहा है कि बॉय गेट 2 फॉर ईच करेक्ट टारगेटिंग एंड लॉस 50 पैसा
फॉर इच रॉन्ग टारगेटिंग। 2 रुपये मिल रहे हैं उसको करेक्ट टारगेटिंग पर, और टोटल अमाउंट ऑफ 3 रॉन्ग टारगेट किया है इसने, तो 3 × 0.5 मतलब 1.50 हो गया। अब 2 × 5 किया हमने तो 10 रुपये आ गए टोटल टारगेट पर, क्योंकि ये बोल रहे हैं 2 रुपये मिल रहे हैं और टोटल करेक्ट टारगेट 5 है। 5 × 2 करेंगे तो 10 आ गए, और गलत टारगेट पर उसको 1.5 रुपया कट रहा है तो 1.50 काट दो तो 8.50 हो जाएगा। नेक्स्ट, ए मंकी क्लाइंब अप टू स्मूथ पोल, ही क्लाइंब 10 मीटर इन मिनट। ठीक है, एक मंकी है जो कि कितना क्लाइंब कर रहा है 10 मिनट पर मिनट पे, फॉल्स डाउन 1 फॉल हो रहा है तो 9 मिनट ही क्लाइंब कर रहा है। ठीक है, अब ये जो बोल रहा है फॉल डाउन 1 मिनट नेक्स्ट मिनट, हाउ मच टाइम विल बी टेक टू क्लाइंब 92 मीटर हाइट। 92 मीटर में से ये 10 क्लाइंब कर चुका है तो 82 बचा। ठीक है, 82 बचा। फिर क्लाइंबिंग 2 मिनट्स में 9 मीटर, तो क्लाइंबिंग इन द 20 मिनट में 9/2 × 20 = 90 मीटर। तो रेस्ट क्लाइंबिंग बची 2 मीटर। फिर ये क्लाइंब करेगा 22/10, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि टोटल क्लाइंबिंग जो थी वो 10 मीटर है और हाइट हमको बता रखी है 92, और फॉलिंग 1 हो रही है तो 10 - 1 मतलब 9 का डिवाइड कर दो तो ये आ गया 10 एंड 2 रिमाइंडर बच गया। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 20। ठीक है, ये हो जाएगा 20 × 2 रिमाइंडर अपॉन टोटल क्लाइंबिंग 10 है इसकी ना 1/5, तो 21/5 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कैसे किया हमने देखिए, इसको हमने सॉल्व किया कि 10 तो इसकी टोटल क्लाइंबिंग थी 92 मीटर, और 1 ये मतलब गिर जाता है फॉलिंग डाउन हो रहा है, तो 92 को हमने 9 से डिवाइड किया तो हमारे पास 2 हमारे पास रिमाइंडर बचा, तो 2/10 तो ये हो गया, और यहाँ पे 2 × 10 टोटल, यहाँ पे जो डबल ग्योटेंट है हमारे पास डबल ग्योटेंट लेते हैं यहाँ, तो 2 × 10 × 2/10 तो ये हो जाएगा 21/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेजिटेबल सिविल आज टू द क्वेश्चन नंबर, हमने कौन सा क्वेश्चन नंबर किया अभी हमने 32 किया, अब 33 है। तो ये बोल रहा है कि 5 कैट्स से 5 माइस से 5 मिनट लगते हैं, तो 2 कैट्स 2 माइस में कितने मिनट लगेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x की 5 मिनट लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ए बुक कंटेन 40 A book contains the 40 pages. Each pages contain 10 lines and each line contains 5 words. तो ये 40 पेजेस और 10 है, फिर टोटल नंबर ऑफ़ वर्ड्स है 40 × 10 × 5, इसका मतलब है 2000 वर्ड्स हैं टोटल यहाँ पर। ठीक है, 40 × 10 × 5 2000 वर्ड्स है इस बुक में। नाउ नेक्स्ट वन इज़ ए वेजिटेबल सेलर वॉज द आस्क्ड हाउ मच वेजिटेबल ही हैज़ टू हिज बैग, ही आंसर्ड rest all the brinjal, rest all the tomatoes except the potato, find total number of vegetable in his bag। तो ये बोल रहा है कि बिकॉज ऑफ द शो 8 वेजिटेबल एक्सेप्ट 8, सो यहाँ पे 8 आएगा। हाँ, द मतलब इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे। रेस्ट 8 रेस्ट ऑल द ब्रिंजल एक्सेप्ट 8 रेस्ट ऑल द टोमेटो एक्सेप्ट 8 आर द पोटेटोज, तो 8 ही इसका आंसर होता है। ये एक शॉर्ट ट्रिक है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द क्वान्टिटी ऑफ ए गेट्स डबल एट द एवरी आवर इन ए पॉन्ड। ठीक है, कुछ भी चीज़ है उसकी, इट बिकम्स फुल इन द 10 आवर, सो इन हाउ मेनी टाइम्स वुड बी द हाफ ऑफ द फील्ड। सो क्वान्टिटी ऑफ द वाटर इज डबल इन एवरी आवर, सो इफ़ इट इज़ फुल 10 आवर देन इट वुड बी हाफ इन द 9 आवर। 10 आवर में ये फुल हो रहा है तो 9 आवर में ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ए शेफर्ड हैज़ 15 sheep, all sheep are kept, 9 died, now how many sheep he have। अब died except 9, तो 9 अगर मतलब 15 sheep हैं, 9 उसकी died हो गई एक्सेप्ट 9, तो 9 उसके पास रिमेनिंग बचेंगी। ठीक है, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। A man climbing the mountain with 180 stairs take rest for 2 minutes. After climbing every 30 stairs, how many did he takes rest till the reach to the top। अभी बोल रहा है कि टोटल कितना है 180 माउंटेन में स्टेयर्स हैं। ठीक है, और अब ये बोल रहा है कि
आफ्टर क्लाइंबिंग 30 उसने क्लाइम की तो 6 नंबर बच गए उसके पास। तो इंटरवल देखना है तो 5। फॉर हाउ मेनी टाइम डिड ही टेक रेस्ट टिल ही रीच टू द टॉप। तो यहाँ पे वो 6 इंटरवल हो गया, मतलब ये 5 हो गया, मतलब 5 × 2 मिनट का रेस्ट ले रहा है, मतलब 10 मिनट का वो रेस्ट ले रहा है। A tailor cut 1 minute cloth into 8 pieces. How many pieces will be cut 37 meter of the cloth? So 1 मीटर क्लॉथ में 8 पीसेस हैं हमारे पास, कट कर रहा है 1 मीटर के 8 पीसेस, तो 37.5 × 8 कर देंगे तो ये आ जाएगा 300 टोटल। तो नन ऑफ द अबव आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 37.5 को 8 से ही मल्टीप्लाई करना है इसको। सो नाउ दिस इज़ ऑल टुडेज मैथमेटिक्स।